এই ভিডিওরে আমি ডিসকসন করিবা नीट 2021 फिजिक्स रो ऑल सॉल्यूशंस। तुम समस्ते जानिच नीट एग्जाम रो टाइम ड्यूरेशन होची 3 आवर्स एंड टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोची 200। सब्जेक्ट रोची फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स बॉटनी एंड जियोलॉजी। ये चारिटा पार्ट रे ईच पार्ट रे क्वेश्चन रोची 50। So total question होची 200 and each part divided two sections. Section A रे होची 35 questions and out of 35 question तुमको करिया पड़िबो। Section B रे होची 15 questions, out of 15 तुमको 10 question करिया पड़िबो। So total each part रे 45 करी question करिया पड़िबो। So total number of the question रहिला 180 and each question carry 4 marks. So total हेजो 720 marks. So now let's go to the solution of physics part. First question देखिबा question number 1 section A रे consider the following statement A and B and identify the correct answer. A रे देला Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator. Option B रे देला the potential barrier of PN junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt. Option A B both correct. 2 number देछि A B both are incorrect. 3 रे देछि A is correct, B is incorrect. A रे देछि 4 रे देछि A is incorrect but B is the correct. देखो पिले किछि इन्फॉर्मेशन तुमको जानि देखिया दरकार। एठी मु लिखिछि when Zener diode is forward biased it behaves like ordinary diode and when reversed bias it will be a voltage stabilizer. सिंपल कथा फॉरवर्ड बायस रे ये ऑर्डिनरी डायोड भलिया काम करे बिहेव करे एंड व्हेन इट कनेक्टेड रिवर्स बायस इट बिहेव्स एज वोल्टेज स्टेबिलाइजर। रूम टेम्परेचर रे वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर फॉर सिलिकॉन पाई की एटा होची 0.6 थारु 0.7 वोल्ट। यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड फॉर जर्मेनियम ये होची 0.3 थारु 0.35 वोल्ट। सो ए स्टेटमेंट जोटा कहिची Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator, ये ठीक। potential barrier of the PN junction lies between 0.1 थारु 0.3 वोल्ट ना ये ठीक नुह कहीं ना सिलिकॉन एवं जर्मेनियम मेनली ये दीटा जिनिस आमे यूज करू फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डायोड। सो सिलिकॉन पाई की होची 0.6 थारु 0.7, जर्मेनियम पाई की होची 0.3 थारु 0.35। सो एटा होची इनकरेक्ट। सो 3 नंबर ऑप्शन होची राइट आंसर। ए इज द करेक्ट एंड बी इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 2। A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V is equals to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be given by. So देखो suppose consider एटा होची गोटे parallel plate capacitor and this is the negative side of the plate and this is the supposed to be considered positive side of the plate and we know that total charge on this plate is equals to C capacitance of the capacitor into potential difference between them Q is equals to CV. Again displacement current we know that displacement current
id is equals to dq by dt. Now it is equals to q is equals to cv. Now putting the value of q here, we can write c dv by dt. ये equals to हो c. v means v not sin omega t. It is given in the question. या को हमें पुट करिया. नाउ या को जदि हमें डेरिवेटिव करिया तले हमको मिलिबो c v नॉट कांस्टेंट ओमेगा cos ओमेगा t. सो id हमको मिलिला c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t. So option 1 is the right answer. V naught omega c cos omega t. Next question है question number 3. A body is executing simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy is डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम. आम जाचु एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एक्स इक्वाल्स टू ए साइन ओमेगा टी इक्वाल्स टू आम लिखिपर ए साइन 2 पाई एन इंटू टी वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक motion. Now potential energy u is equals to हमें कौन जानिचु हाफ into k x square. Now it is equals to half k x square means a square sin square 2 pi n t. Okay. Now it is equals to हमें लिखि परिबा हाफ k a square sin square 2 theta means हमें लिखि परिबा sin square theta means हमें लिखि परिबा 1 minus cos 2 theta by 2. 1 minus cos 2 theta तक आम रिअरेंज करके लिखा 2 इंटू 2 n इंटू टी एभली भाव में लिखिपर. सो cos 2 थीटा. सो गोटे 2 मल्टीप्लाइंग है 4 हो. सो 4 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 2. नाउ cos रे देख 2 पाई n जगह एटी है 2n. ताले फ्रीक्वेंसी केते हला. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ताले हम लिखि परिबा जे फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ए केते हला 2n. सो राइट आंसर इज द 2n. ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 रे देछि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज. देखो एटा जदि हमें ए पॉइंट धरिबा एंड दिस इज द बी पॉइंट. ए या सहित ए कैपेसिटर लागि ए ता सहित आउ गोटे कैपेसिटर लागि एवं ए दीटा सीधा एठी कनेक्ट हेछि and then goes to the B. but या भितर जो कैपेसिटर टा लगी ये फॉल्स. यार किसी काम ना कहीं ये डायरेक्टली एमती शॉर्ट अच्छे. सो यार किसी काम ना. तो सिंपली आम एटा लिखिपर जे इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जेहेतु एटा पैरेलल कॉम्बिनेशन रे अछि ताले C1 plus C2 होबो और C1 C2 होजी सेम. सो 2C इज द राइट आंसर. सो option 2 is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कही फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास देछि √3 तो देखो एमती नॉर्मल इंसिडेंट होइछि सो नॉर्मल इंसिडेंट रे एमती सीधा पळे आसीबो सीधा एमती पळे आसीबो नाउ एई फेस रे आमे एठी जदी नॉर्मल ड्रॉ करिवा ताहले एठी देखो आई होउछि 0 डिग्री एंड एटा हो जिवो हमर r1 आल्सो 0 डिग्री बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट ये देखो 90 डिग्री ये 60 डिग्री इज गिवन नाउ ए एंगलटा हो जिवो 30 डिग्री ओके नाउ जेहेतु एटा होची एंगल ऑफ द इंसिडेंट फॉर सेकेंड फेस नाउ रे एठारु बाहर केतले बाहरिबो एटा होची इनसाइड द प्रिज्म दैट मीन्स डेंसर मीडियम रे अछि तले रियल मीडियम केतले बाहरिबो तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हबो सो रे एमति बाहरिबो एवं हमको बाहर करिया कथा कहिछि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इमर्जेंस तार माने ई बाहर करिया अछि दिस इज द एंगल ऑफ द इमर्जेंस ई वी हैव टू फाइंड आउट सो ये जदि 30 हबो तले ए एंगल टे केते हबो डियर स्टूडेंट ये होछि 90 डिग्री नॉर्मल सो ए एंगल टा हे जिवो हमर केते डिग्री 60 डिग्री सो ये जदि 60 हबो ये केते हबो ये होछि हमर एक्चुअली r2 so r2 is equals to 30 degree all right now हमें एठी लिखिबा जे mu is equals to √3 given in the question and also given r1 is equals to 0 I equals to also 0 now we know that from the prism formula a is equals to r1 plus r2 so it is equals to 30 degree r1 plus r2 r1 0 r2 is 30 so a is equals to 30 degree from Snell's law आमे कौन लिखि परिबा mu 1 2 means एटा होची एयर मीडियम माने होची 1 मीडियम दिस इज द 1 मीडियम एयर मीडियम दिस इज द डेंसर मीडियम दिस इज द 2 मीडियम 2 so when the light ray is the reversible so जेउ डायरेक्शन लाइट आसी के एमती बाहर छी एपट जदी लाइट जो पुनी सेही सेम डायरेक्शन से बाहर की जीवो so mu1 by mu2 is equals to हम लिखि परिबा sin e by sin r2 now mu1 2 means mu2 by mu1 with respect to the air equals to sin e by sin r2 now और आम एठी लिखि परिबा mu1 टा होची एयर पई कि mu1 होची 1 so mu2 is given √3 so हमको बाहर कर अछि e बाहर कर अछि so sin e is equals to mu2 means √3 into sin r2 वैल्यू केते बाहर छी r2 वैल्यू बाहर छी हमर एठी r2 होची 30 डिग्री so हम एठी पुट करिवा 30 डिग्री so it is equals to √3 sin 30 डिग्री sin 30 वैल्यू होची हाफ so it is equals to √3 by 2 माने हला sin 60 डिग्री sin 60 degree so sin e is equals to sin 60 degree that means e is equals to 60 degree this is our answer so option A is the right answer next question dala question number 6 a dipole is placed in an
electric field as shown in which direction will be move direction টা আচ্ছা in which direction will it move কোউ ডাইরেকশন রে এই ডাইপোলটা মুভ করিব কোউ ডাইরেকশন রে এই ডাইপোল মুভ করিব আমকু বাহার করির আছে electric field always directed from higher potential energy to the lower potential energy so this is high potential energy and this is low potential energy so higher potential energy to the lower potential energy it is the direction of the electric field so যেহেতু এটা হচ্ছে হায়ার পোটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে ইয়া উপরে রিপলশন ফোর্সটা অধিক রহব एंड यार आकर्षण या पर जो अट्रैक्शन फोर्सटा ये बहुत कम रहिबो ताले या को ए डायरेक्शन रे पेलिबो सो ये राइट वर्ड डायरेक्शन रे मूव हबो ओके एवं हायर पोटेंशियल एनर्जी थारु लोअर पोटेंशियल एनर्जी ए डायरेक्शन रे मूव हबो सो को ऑप्शन टा राइट हबो ऑप्शन 1 देजी टुवर्ड्स द लेफ्ट ना लेफ्ट तो हबोनी टुवर्ड्स द राइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर राइट को मूव हबो एंड जो डायरेक्शन रे तार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हबो से डायरेक्शन से मूव हबो सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देजी क्वेश्चन नंबर 7 एठी कहिची मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉलम 1 एवं कॉलम 2 को मैच करिया कथा कहिची अच्छा कॉलम 1 रे देची रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बी रे देची प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस सी रे देची एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल आउ देची डी रे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस सो रूट मीन स्क्वायर आमे जानिछु जे रूट मीन स्क्वायर होची रूट ओवर 3RT डिवाइडेड बाय m प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस आमे जानिछु दिस इज द 1/3 nm v bar square average kinetic energy आमे जानिछु average kinetic energy this is the 3/2 kVt and total internal energy of 1 mole of the diatomic gas eta आमे जानिछु 5/2 RT so right answer हे जो a cube b p and c s d r so option 3 is the right answer next question jiba next question हला question number 8 question number 8 रे कहूची a convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of the focal length 5 cm are kept along same axis with a distance d between them if a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam अच्छा then the distance d in centimeter will be ता भीतर जो डिस्टेंस टाको बाहर करिया कथा कहिछि ताले देखो सेम एक्सिस रे अछि सो आमे प्रथमे ओडे एक्सिस टानी पकेबा सो दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस एई कन्वेक्स लेंस थारु d डिस्टेंस रे एठी हम पाखरे अछि ओडे कॉनकेव लेंस okay concave lens and the distance between the convex and concave lens eta देछि केते d and हमको बाहर करियर अछि d डिस्टेंस केते ओके अच्छा सेकंड कथा क्वेश्चन रे कहिछि पैरेलल बीम आसी कि इंसिडेंट हेछि ऑन द कन्वेक्स लेंस ओके पैरेलल बीम या धरे फॉल हेछि देन ये कोन हबो बेंड हबो यार प्रॉपर्टी होची एमती बेंड हबो एपटे भी एमती बेंड हबो बेंड हला परे ये जेते बेले फॉल करूची ऑन दी सेकंड लेंस कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कोन होची ना पैरेलल होची अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हला क्वेश्चन बुझियला एटा एमती पैरेलल होची एवं एटार फोकल लेंथ f1 एटा होची a लेंस एटा मने करो b लेंस आउ एटा होची f2 f1 दे दिछि तुमको केते 20 सेंटीमीटर f2 देछि केते 5 सेंटीमीटर
ताहले आमको बाहर कर अछि डी डिस्टेंसटा केते सेटा आमको बाहर कर अछि। तो देखो एटा को आमे जदि आ टिके आगो को बढ़े दबा ताहले आमको कोन मिलियो ना ये प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर जो पॉइंट रे मीट हबो दिस पॉइंट इज द फोकस and this is the distance f1. So this is our 20 centimeter. This is the 20 centimeter. And f2, that means this distance, this is the 5 centimeter. Now we have to find out the distance between the lens A and lens B. So देखो এই ডিস্টেন্সটা যদি 20 হবো এবং এইটারও এটা যদি 5 হবো সো এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যাব 20 মাইনাস 5 সো ডি ইজ ইকুয়ালস টু আমি লিখি পারিবা f1 মাইনাস f2 সো ইট ইজ ইকুয়ালস টু 20 মাইনাস 5 ইজ ইকুয়ালস টু 15 সেন্টিমিটার সো অপশন 2 ইজ দ্য রাইট আনসার 15 সেন্টিমিটার जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इफ फोर्स F acceleration A and time T are chosen as fundamental physical quantities find the dimension of the energy देखो एनर्जी डायमेंशन बाहर कर रही बट फंडामेंटल क्वांटिटी का धरिया पड़ो फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम को धरिया पड़ो ताले एनर्जी इक्वल्स टू आम कौन जानिचु एनर्जी E इज इक्वल्स टू आम जानिचु फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सो फोर्स तो आमको मिलगला फोर्स और डायमेंशन F बट डिस्प्लेसमेंट तो किसी नहीं तो या को हमको कन्वर्ट करा पड़ो एक्सेलरेशन एवं टाइम यही फॉर्म रे सो आम एमती लिखा एफ दिस इज एस बाय टी स्क्वायर इनटू दिस इज टी स्क्वायर एमती मु लिखी सो एस बाय टी स्क्वायर एटा होची एक्सेलरेशन ताले फोर्स हला एक्सेलरेशन हला इनटू टाइम रो होल स्क्वायर हला ताले ई रो जदी मु डायमेंशन नेबी ताले फोर्स और डायमेंशन जेहेतु एटा होची फंडामेंटल क्वांटिटी सो एफ एक्सेलरेशन रो ए एंड टी होची टाइम सो कैपिटल टी यार होल स्क्वायर सो दिस इज द आवर आंसर एफ ए टी स्क्वायर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहिची a cup of coffee cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in T minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at room temperature same at 20 degrees Celsius each. देखो ये क्वेश्चन देइछि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग भल से तुमको रिमेंबर करिया पड़ियो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग तुमको कहूछि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हला टेम्परेचर डिफरेंस थीटा आई माइनस थीटा एफ इनिशियल टेम्परेचर बाय फाइनल टेम्परेचर बाय डिफरेंस ऑफ द टाइम मीन्स ए टेम्परेचर रु ए टेम्परेचर जीवाकू केतिकी टाइम लागिछि इक्वल्स टू गोटे कांस्टेंट रहइबो एंड रहइबो थीटा आई प्लस थीटा एफ इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यू एस मीन्स रूम टेम्परेचर तो एडी दीटा कंडीशन देइछि एतिकी गोटे कंडीशन देइछि पुणी এই कंडीशन रो हमकू केयर वैल्यू बाहर करिया पड़िबो एवं सेकंड कंडीशन रे हमकू बाहर करिया कहिछि जे टाइम बाहर करिया कहिछि ताले सेते बेले केयर वैल्यूटा प्रथम कंडीशन रो बाहर करी पुट करिवा एंड टाइम टा बाहर करिया सो देखो कंडीशन 1
कंडीशन 1 रे हमको देइछि केते जे टेम्परेचर डिफरेंस देइछि 90 आउ 80 दैट मींस थीटा आई थीटा एफ या डिफरेंस टा हेजबो 10 एवं टाइम केते लागिछि टाइम लागिछि टी मिनिट सो एठी टी डेल्टा टी लिखिबा इज इक्वल्स टू केटा के रहिला देन थीटा आई प्लस थीटा एफ 90 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 तार माने एटा हेजो 85 माइनस थीटा एस मींस रूम टेम्परेचर केते 20 डिग्री सेल्सियस सो दिस इज द 20 ताले एठारु आमे के र वैल्यू बाहर करि परिबा सिंपली आमे एठी करि परिबा के इज इक्वल्स टू दिस इज 10 divided by 85 minus 20 that means 65 t so याकू हमें यदि simplified करिवा 5 to 10 5 this is the 13 so it is equals to 2 by 13 t it is the value of the k now condition 2 होची second part एठारु एतिकी या मध्ये condition 2 आसीबो कंडीशन 2 रे हमको देइछि जे टेम्परेचर डिफरेंस कूल हेछि को टेम्परेचर ना 80 डिग्री थारु 60 डिग्री टेम्परेचर सो 80 माइनस 60 ताले एटा केते हेजो 20 हेजो 20 डिवाइडेड बाय एज डेल्टा टी एई टाइम टा को हमको बाहर करिया पड़िबो केते टाइम लागियो सो इज इक्वल्स टू के र वैल्यू दिस इज द फार्मूला के र वैल्यू हमको जणा के होछि 2 बाय 13t देन आमे कोन करिया थीटा आई प्लस थीटा एफ दैट मींस 80 प्लस 60 बाय 2 ताले केते हबो एटा को मिसेई की दुई देकी हरले एटा हेजबो जेतु एटा होची 60 80 ताले 70 हेजबो तो दिस इज द 70 माइनस थीटा एस रूम टेम्परेचर दिस इज द 20 नाउ this is 10 so 10 by delta t is equals to this is 50 by 13t 0 goes cancel or delta t is equals to eta bharibo 13 by 5t ताले हमर टाइम केते बाहरला 13 by 5t 13 by 5t option 2 is the right answer जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जी a particle is released from height s from the surface of the earth at a certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy the height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively तले तुमको बाहर करिया कथा कहिछि जे मने करो गोटे पार्टिकल अर्थ सरफेस तारु एटा होछि मने करो अर्थ सरफेस दिस इज अर्थ सरफेस या थारु s डिस्टेंस रे होछि पार्टिकल टा एडी मने करो गोटे पार्टिकल अछि सो एई पार्टिकल टा s डिस्टेंस s हाइट रे अछि फ्रॉम द अर्थ सरफेस एठी तार जेति की पोटेंशियल एनर्जी अछि पोटेंशियल एनर्जी तार एठी जा हबो जेते बेले ये डाउनवर्ड को आसीबो तळो को आसीबो मने करो एंतिया जगह को आसीबो तले तार पोटेंशियल एनर्जी टा सेते बेले कन्वर्ट हबो इनटू द काइनेटिक एनर्जी सो मने करो ए डिस्टेंस टा हला h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ताले एठी तार काइनेटिक एनर्जी जा हबो एई काइनेटिक एनर्जी टा केते हबो एई काइनेटिक एनर्जी टा एठी कहिछि 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी सो एई h हाइट रे जदि बॉडीटा आसीबो ताले तार काइनेटिक एनर्जी हेजिबो 3 इनटू पोटेंशियल एनर्जी सो एति के होछि कांसेप्ट तो एति कांसेप्ट रो हमको बाहर करिया पड़िबो जे h केते एई h हाइट टा केते एंड
তার স্পিড অফ দি পার্টিকেল আর দ্যাট ইনস্ট্যান্ট আর রেসপেক্টিভলি এই জায়গায় তার ভেলোসিটি কেতে হব বাহার করে রয়েছে। তো দেখো খুব সিম্পল কোশ্চেনটা। তাহলে আট টপ তাহলে এই টপ পজিশନରେ আমি কোন লিখিপারিবা টোটাল এনার্জি কোন টোটাল এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি প্लस पोटेंशियल एनर्जी। एटी तर काइनेटिक एनर्जी नाही बिकॉज ये रेस्ट रे अछि। रेस्ट जदि रहिबो ताले ऑल एनर्जी इज दी ऑल एनर्जी इज दी in the form of the potential energy, there is the no motion, so it has no kinetic energy. So it is equals to only potential energy माने इटा हाइट होउची s ताले हम लिखि परिबा mgs तार काइनेटिक एनर्जी तबले होउची 0। सो हमें काइनेटिक एनर्जी को k लिखिबा k टा होउची 0 प्लस u इज इक्वल्स टू mgs। एबे at height h height रे हमें कौन लिखि परिबा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 into पोटेंशियल एनर्जी। ताले सेते बेले तार काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अच्छा सेते बेले तार काइनेटिक एनर्जी k प्लस काइनेटिक एनर्जी होची 3 into पोटेंशियल एनर्जी। that means 3u plus u equals to 3u plus u capital U equals to mgs। इक्वेशन में पुट करिया ताले सेतेबेले त काइनेटिक एनर्जी होची 3u प्लस u ताले mgs। ताले सिंपली आमे कौन बाहर करि परिबा पोटेंशियल एनर्जी डाटा को पोटेंशियल एनर्जी एटा को मु यू डैश कर देबी कि यू डैश कर दिया तले भलो हबो। सो एई पोटेंशियल एनर्जी हला एई पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट तले एई पोटेंशियल एनर्जी केते हिजबो 4 into u डैश आउ u डैश माने होची mgh इक्वल्स टू mgs। G and M goes cancel ताले एठारु आमे बाहर कर दे परिबा H is equals to S divided by 4 ताले H और वैल्यूटा बाहरला। एबे हमको बाहर करे रछि तार काइनेटिक एनर्जी सॉरी वेलोसिटी। ताले वेलोसिटी केमिति बाहर करिया ना आमे जानिचु देयरफॉर आमे कोन जानिचु काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 into पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी माने हला mgh। एबे h और वैल्यू को हम एटी पुट करिया 3 mgh माने s/4। काइनेटिक एनर्जी माने हला हाफ into m into v square is equals to 3 mg s/4। okay now अच्छा एबे और आमे एठारु m को काटी दा देन v is equals to आमर भारिबो रूट ओवर 3/2 भारिबो gs। अच्छा एटा कटिबो एटा 2 हो सो 3/2 gs तले रूट ओवर 3gs/2 आउ एटा होची s/4 रूट ओवर 3gs/2 so this is the right answer। option 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 12 कहि जे द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल
of mass m and intensity d when dropped in container filled with glycerin become constant after some time. If the density of the glycerin d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. খুব ইন্টারেস্টিং। Suppose consider this is the ball, এই বলর মাস ହେଲା m and ये डाउनवर्ड डायरेक्शन रे एमती जेतेबेले जेकोसी लिक्विड भितरे ग्लिसरीन भितरे तळको आसीची सेतेबेले तार डाउनवर्ड फोर्स दिस इज द mg एक्टिंग ऑन इट बट लिक्विड भितर जेतेबेले से डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तळको मूव होची या ऊपर दीटा फोर्स एक्ट हबो गोटे फोर्स होची अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज द विस्कस फोर्स fv आउ गोटे हला दिस इज द बुएंसी फोर्स fb नाउ आमे कौन जानिचु जे fv प्लस fb ए दीटा फोर्स का सहित इक्वल हबो mg सहित इक्वल तो नाउ विस्कस फोर्स दिस इज fv हमको बाहर करे अछि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल fb बाहर करे अछि प्लस बुएंसी फोर्स माने होची बुएंसी फोर्स केमिति बाहरिबो बुएंसी फोर्स हमें एमति बाहर करिबा fb इज इक्वल्स टू मास इनटू g mg सो मास केते ना जेकोसी बॉडी को गोटे लिक्विड भितर देले हम बुडेबा ताले तार किछि वेट अपरेंटली रिड्यूस हो जाए हैला तो जेति की तार वेट रिड्यूस हबो आउ जेति की से लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करिवो ए दि जनकर वेटटा इक्वल हुए ताहले आमे एई बुएंसी फोर्स को बाहर करिया पई कि लिक्विडर डेंसिटी को नै जिबा रो v एति की वॉल्यूम लिक्विड मने करो डिस्प्लेस्ड हेछि into g mass माने होछि रो v into g एंत लिखि परिया रो मींस d by 2 given in the question glycerin the density of the glycerin d by 2 into v माने हम लिखि परिया m by d mass divided by density into g ओके तले d d कटि जबो m by 2 g सो एटा हे जबो এটা কোন হয়ে যাব mg by 2 so it is equals to mg by 2 equals to mg or fv is equals to mg minus mg by 2 so it is equals to mg by 2 so option A is the right answer. Next question होजी question number 13 for a plane electromagnetic wave propagating in x direction which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field E and magnetic field B respectively. Electric field, magnetic field and direction of the propagation, all of these are perpendicular to the each other. So suppose this is the I x direction and this is x, this is y, this is z. So this is j cap and this is the k cap. Suppose this is the direction of the propagation of the wave. Propagation of wave. Okay. Now as E and B
are perpendicular to the each other, so always E vector dot B vector is equals to 0 सबु बेले एटा 0 हबो ताले हमकु देइछि E एवं B विभिन्न प्रकार चारिटा वैल्यू देइछि चारटा कॉम्बिनेशन देइछि सो या भितर हमकु देखा पड़िबो किए 0 होउछि ताले प्रथम टाको जदि हम देखिबा J दैट मींस 1 E जगह जो आम बसवा J प्लस के कैप डॉट J प्लस के कैप ताले एटा हे जो केते 1 प्लस 1 समान 2 हबो ताले ये हबनी ये रॉन्ग सेकंड देखिबा J सो एटा होची प्लस 1 एटा होची K माइनस K ये होची माइनस 1 ये होची 0 ताले ये ठीक नेक्स्ट देखिबा J आउ माइनस J ये होची माइनस 1 K माइनस 1 माइनस 2 ये रॉन्ग ये 0 हो नहीं ये माइनस जे प्लस 1 और के प्लस 1 2 हो तो ये भी हो नहीं सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर सिंपली हम ताको एटी देखि देबा जे ई वेक्टर एवं बी वेक्टर जेहेतु परपेंडिकुलर टू द ईच अदर सो ई डॉट बी हमर कोन हवा दरकार 0 हवा दरकार सो ए कंडीशन सैटिस्फाइड करथबो जो कॉम्बिनेशन टा दिस इज द आवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दला क्वेश्चन नंबर 14 कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करिया को सो कॉलम ए रे देइछि गिव्स द सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ द करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर कॉलम 2 रे देइछि गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विथ एप्रोप्रिएट रिलेशन देखो कॉलम 1 रे किछि देइछि हमकु एवं कॉलम 2 रे किछि हमकु इक्वेशन देइछि हम देखिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी देइछि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देइछि रिलैक्सेशन पीरियड देइछि एंड करंट डेंसिटी देइछि तो खूब सिंपल किछि इक्वेशन भी एडी देइछि यार इक्वेशन रेडी होछि हमको मैच करय पड़ियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें जानि छे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होछि e by m tau that means a tau drift velocity vt is equals to a tau a means e divided by m tau so drift velocity a hela a ro hela r b होजी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये होजी रेजिस्टिविटी e by j इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होची E by J इलेक्ट्रिक फील्ड बाय करंट डेंसिटी नेक्स्ट हला रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ये हला m by n स्क्वायर by रो सो 0 हला p एंड करंट डेंसिटी आमे जानिचु जे करंट होची I इज इक्वल्स टू E n a v d सो करंट डेंसिटी J माने होची I by a सो एटा हिजबो E n v d सो करंट डेंसिटी होची q सो d रो हला q सो को ऑप्शन राइट हबो देखो a r s p q a r b s c रो p d रो q ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि a spring is stretched by 5 cm by a force 10 Newton. The time period of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is. Question 15 रे जो क्वेश्चन कहिछि यादरे टाइम पीरियड एक्सप्रेशन आमे ऑलरेडी जानिछु जे टाइम पीरियड एक्सप्रेशन हला t is equals to 2 pi root over केते m by k ओके अच्छा k हला फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू हमें जानि छु कोन f by l फोर्स बाय लेंथ फोर्स कांस्टेंट फोर्स केते 10 न्यूटन लेंथ केते 5 सेंटीमीटर दैट मींस 5 into 10 to the power minus 2 so it is equals to अच्छा एते न्यूटन पर मीटर हमें एमति लिख दवा नेक्स्ट हम लिखिबा मास केते मास होजी 2 kg गिवन इन द क्वेश्चन नाउ हमको बाहर करे अछि द टाइम पीरियड t सो देखो एटा केते बाहरिबो 2 pi
रूट ओवर एम माने 2 डिवाइडेड बाय सो एटा हबो 5 टू 2 बाय एटा 2 बाय 10 टू द पावर 2 सो m वैल्यू हैला 2 k वैल्यू हैला 2 into 10 to the power minus 2 ओके बा 200 कर देले भी हबो सो एटा को मु 200 कर देबी चला सिंपली सो नाउ इट इज इक्वल्स टू 2 pi into 1 by 10 so it is equals to pi by 5 second time period 5 pi by 5 second एटार यदि आम या सिंप्लीफाई करवा एटा हमको मिलिबो 3.14 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज सेकंड सो इज इक्वल्स टू 5 0 6 30 टू 10 5 8 40 so second so now the right answer is 0.628 seconds. Next question is question number 16. Question number 16 ने कोई जी a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is. ताहले हमें कौन जानी चे ना energy density per unit volume एनर्जी डेंसिटी आम जानी केते एनर्जी एटा जदि गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हबो ताले फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट हेगी थाए ई नाउ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम केते स्मॉल u is equals to half into epsilon naught e square या को हमें जानी छु नाउ जदि टोटल एनर्जी डेंसिटी बाहर करके पड़े एटा होची पर यूनिट वॉल्यूम जदि हमें बाहर करिया टोटल एनर्जी डेंसिटी ए जिनिसटा हमको बाहर करिया कथा कहि छी टोटल एनर्जी डेंसिटी हे छी ना energy stored in the capacitor that means total energy density so एटा को हमें कैपिटल U कहबा U is equals to small u means energy density per unit volume into volume केते A into D is the separation between the two plate and A is the area of the plate so AD is the volume now it is equals to half epsilon naught e square AD is the right answer half epsilon naught e square AD option 3 is the right answer जी next question हला question number 17 an infinitely long straight conductor carrying a current of 5 ampere as shown in the figure and electron is moving with speed 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. ताहले हमको बाहर कर रही magnitude of the force को force जेहेतु straight wire देजी ताले magnetic force ताले मैग्नेटिक फोर्स और एक्सप्रेशन आमे जानी छु मैग्नेटिक फोर्स और एक्सप्रेशन केते F is equals to we know that this is the EVB okay EVB and एटा होची गोटे वायर एंड डायरेक्शन रे वायर रे करंट जाउची ताठारु r डिस्टेंस रे जे कोनसी पॉइंट जे गोटे p देटिबा ताले से p पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड B एक्सप्रेशन कौन हुए B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 pi r फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ नाउ हमें कौन करिया F
बाहर करिया सो ई भि इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ईर भैल्यू केते 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भीर भैल्यू केते 10 टू द पावर 5 म्यूर भैल्यू केते 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आईर भैल्यू केते आईर भैल्यू देइछि 5 एम्पियर सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आर भैल्यू केते 20 सेंटीमीटर दिस इज द 20 सेंटीमीटर that means 0.2 meter now 2 goes cancel these two so eta utila eti gote 10 habu now these two goes cancel so now 1.6 ता सहित 5 मल्टीप्लाइंग हेले एटा हे जिवो 8 हे जिवो 8 into एटा हबो 10 to the power minus 19 10 to the power minus 7 10 to the power minus 26 ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି 10 to the power 5 ଆଉ 10 to 10 ତାମାନେ 10 to the power 6 ତାହେଲେ 10 to the power minus 20 ଏତେ ନ୍ୟୁଟନ ବାହାରିବ so answer is the option 4 8 into 10 to the power minus 20 न्यूटन okay next question कहूची a lens of large focal length and a large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since a large aperture contributes to the equality and visibility of the images right ये ठीक कथा a large area of the objective ensure better light gathering power এটা भी ठीक कथा large aperture means better light gathering power ठीक ऑप्शन 3 कही a large aperture provides a better resolution ठीक ये भी ठीक so all of the above is the correct option 4 is the right next question देखिए question number 19 कही a radioactive nucleus XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence XAZ एटा आमर हेची B means गोटे इलेक्ट्रॉन कमिची पुणी दीटा इलेक्ट्रॉन कमिची पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन कमिची एठी गोटे इलेक्ट्रॉन कमिची दैट मीन्स ये हेची गोटे इलेक्ट्रॉन कमिची माने बीटा प्लस डीके एठी दीटा इलेक्ट्रॉन कमिची तार माने एटा होची अल्फा डीके एठी पुणी कोन हेची गोटे इलेक्ट्रॉन बढ़ीची दैट मीन्स बीटा माइनस डीके so option 3 is the right answer जीवा next question होची question number 20 an inductor of inductance देची L capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in figure. Potential difference across LCR दे दीजिए 40 volt, 10 volt and 40 volt. This is the C, this is the L, एटा होची C, एटा होची R. अच्छा कौन बाहर करे अछि इम्पीडेंस सो इम्पीडेंस माने होची V नॉट बाय I नॉट ताले V नॉट एंड I नॉट हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करे अछि ताले Z बाहर करे अछि इम्पीडेंस ताले Z इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू हमें जानि छु V नॉट बाय I नॉट ताले V नॉट बाय I नॉट केमिति बाहरिबो ताले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करे अछि V माने होची सप्लाई वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज केते ए सप्लाई वोल्टेज केते बाहर करे अछि देखिया केमिति बाहर छि ताले देखो सप्लाई वोल्टेज V is equals to root over VL minus VC यार होल स्क्वायर प्लस VR रो होल स्क्वायर हम जानि छु एबे
VL आमको जना VL होची केते VL होची आमको 40 और VC होची 10 40 minus 10 30 रो होल स्क्वायर सो इट इज इक्वल्स टू 40 minus 10 रो होल स्क्वायर प्लस VR माने होची 40 रो होल स्क्वायर दिस इज द वोल्ट नाउ इट इज इक्वल्स टू 30 होल स्क्वायर प्लस 40 रो होल स्क्वायर 9 और 16 25 सो इटा हे जिवो 2500 तार माने होची 50 हे जिवो 50 वोल्ट ओके तो 50 वोल्ट बाहरला V ताले पीक वोल्टेज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज ताले पीक वोल्टेज केते बारियो पीक वोल्टेज ऑफ peak value of the supply voltage peak value of supply voltage केते भारियो V naught is equals to केते root 2 V so it is equals to 50 root 2 volt भारियो नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट केते भारियो करंट आई नॉट केते भारियो आई नॉट दे दीज क्वेश्चन दे देखो फ्लोइंग एलसीआर देज आई नॉट सो दिस इज 10 रूट 2 एम्पियर ताले इंपिडेंस केते भारियो V नॉट बाय आई नॉट ताले V नॉट केते 50 रूट 2 वोल्ट बाय आई केते 10 root 2 so it is equals to get 5 ohm so option 4 5 ohm is the right answer next question how is question number 21 the escape velocity from the earth surface V the escape velocity from the earth's surface is V the escape velocity from the earth's surface of another planet having radius 4 times that of the earth and same mass density is ताले escape velocity earth रो देछि V आउ कहिछि कि जे another planet जा radius होछि 4 times of the earth तार escape velocity बार करिया कथा कहिछि mass density टा होछि same so खूब सिंपल एडा हम जानिछु फॉर्मूला हमें जानिछु एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल्स टू हमें कौन जानिछु रूट ओवर 2g m डिवाइडेड बाय r या हमें जानिछु नाउ इडी हमें कौन पुट करिवा 2g m जगह रे पुट करिवा 4/3 पाई r cube rho divided by r okay so these r and these r को टिके स्क्वायर रहिबो ताले VE proportional to r VE proportional to r now V dash by V जदि हमें करिवा ताले हमको कोन मिलियो जे r dash by r V dash टा होची कोठी another planet ताले ए रेडियस टा हिजबो 4r आउ V टा होची escape velocity of the earth ताले earth radius होची r so it is equals to 4 now V dash is equals to ताले केते बाहरिबो 4 into V so this is our final answer for V next question हला question number 22 a screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire main scale reading देछि 0 mm and circular scale reading देछि 52 divisions given that 1 millimeter on main scale corresponding to the 100 division on the circular scale the diameter of the wire from the above data is so आमे जानिछु एंती
गोटे स्क्रू गेज होता है ये जेकोसी गोटे जिनस थाए तार डायमीटर टाको मेजर करने एंड एटा हूँ आमर सर्कुलर स्केल दिस इज आवर सर्कुलर स्केल या 100 पार्ट 100 डिवीजन थाए एंड दिस इज आवर लिनियर स्केल ताले ए लिनियर स्केल रे 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस्ड हबो केते बेले जेते बेले ई सर्कुलर स्केल रे 100 डिवीजन कंप्लीट हबो ताले आमे सिंपली लिस्ट काउंट बाहर करि परिबा लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू केते लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 by 100 that means 0.01 millimeter ताले डायमीटर ऑफ द वायर केते हबो डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट ताले सर्कुलर स्केल रीडिंग केते 52 इनटू लिस्ट काउंट केते 0.01 मिलीमीटर सो इट इज इक्वल्स टू 0.52 मिलीमीटर सो 0.52 मिलीमीटर माने हला सेंटीमीटर को जदि हमें कन्वर्ट करिवा ताले एटा हे जिवो 0.052 सेंटीमीटर सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हो 23 वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर at the rate of 15 kg per second to operates a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? ताहले एक्चुअली 10% एनर्जी लॉस हो जाउची ताले केतिकी परसेंट एनर्जी पावर जनरेट करूची 90% एनर्जी जनरेटिंग पावर ओके अच्छा एटी कौन देइची हाइट देइची h इज इक्वल्स टू 60 मीटर देइची एंड कहिची रेट ऑफ एट द रेट ऑफ एते तार माने होजी मास पर सेकेंड देइची केते 15 kg पर सेकेंड एते हाइट रु जे वाटर टा फॉल होजी से प्रति सेकेंड रे 15 kg वाटर फॉल होजी ऑल राइट द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10% ताले ओनली 90% इनपुट एनर्जी यूज्ड हबो फॉर जनरेटिंग पावर ताले पावर इज इक्वल्स टू केते बाहरिबो पावर इज इक्वल्स टू m by t rate of the fall of the water into g into h mgh so mgh by time that means energy by time it is equals to power here 90% 10% loss so 90% power generated hoji now this is 15 into g is equals to 10 h is equals to 60 into 90 by 100 now 0 goes cancel 0 goes cancel 15 into 6 90 into 90 so is equals to 8100 this is watt now या को जदि हमें किलोवाट रे कन्वर्ट करिया तले एटा हे जिवो 1000 देके हमें आगो हरिया को पड़ियो तले 8.1 किलोवाट so option 2 is the right answer next question हला question number 24 a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equals to 0 let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n then the ratio of the Sn by Sn plus 1 बाहर करिया कोइछि देखो simple inclined plane this is the simple inclined plane now a particle is rolling down from here ताले initially यार velocity केते u equals to 0 ताले Sn means n time रे तार velocity so formula केते formula होची Sn माने हला u plus
half into a into 2n minus 1. So this is the formula of the distance covered by the nth time. So Sn nth time रे से केते distance cover करछि. This is the distance covered by the nth time, distance covered by the n plus 1 time. So Sn is equals to u means 0 plus half a into 2n minus 1. This is the distance covered by the n time. Distance covered by the n plus 1 time कौन हबो formula? Sn plus 1 is equals to 0 plus half a to n जगह रे n plus 1 है जो minus 1. Okay. Now is equals to half a 2n plus 2 minus 1 तार माने हो 2n plus 1 है जो 2n plus 1. ताले हमको बाहर करे रछि Sn by Sn plus 1. So Sn केते हबो? Sn देखो हाफ a कटि जो ताले 2n minus 1 by 2n plus 1. ताले 2n minus 1 by 2n plus option 2 is the right answer. Next question होछि question number 25. Polar molecule are the molecules. Option A दीची having zero dipole moment. Polar माने तो dipole moment रहइबो तालेटा भूल. Acquire dipole moment only in the presence of the electric field due to the displacement of the charge. ना ये भी भूल. Acquire dipole moment only when magnetic field is absent. Magnetic field ऊपर यार किछि रिलेशन नहीं. Magnetic field absent हेले जे रहइबो सेमति किछि कथा नहीं. क्वेश्चन ऑप्शन 4 रे देछि जे हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. हां ये राइट. पोलर मॉलिक्यूल्स मींस जार परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अछि ताको हमें कहबा पोलर मॉलिक्यूल्स. सो डियर स्टूडेंट दिस इज हाफ ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन 2021. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हो जी तो 50. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे मु डिस्कशन करिवि. ओके थैंक यू.